हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेट्रोमाइजोंटिडा का एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी हम लोगों ने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया एक लंबा। सो फार वी हैव सीन, जहाँ तक मुझे याद है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब हम लोगों ने देख लिया था, स्केलेटल सिस्टम देख लिया था। सो योर CR हैज़ updated me about this, that nervous system of lamprey is remaining, and thereafter we will see urinogenital system of lamprey, reproductive system also we will see in that, and the development of petromyzon. Okay, in that different larval forms are there, that also we will see later. So right now we are going to see nervous system of petromyzon, okay, or the nervous system of lamprey. We will see this now. ओके तो अभी तक हम लोग प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स पढ़े। ओके, एम्फियोक्सिस जैसा क्रेनियम है, क्रेनिएट्स भी पढ़े, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा एम्फियोक्सिस वर्टिब्रेट तो नहीं है। ओके, और यू कैन सी और प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है। ओके, vertebrates are in the rudimentary form. So the development of brain in lamprey is well developed. Nervous system is well developed in comparison with those animals like lanceolets. Okay. So the nervous system is, we see in this, it is well developed. And studying the nervous system of lamprey also enlightens us about the typical vertebrate nervous system. Okay, as you already know that development of nervous system starts from the formation of neural tube. Okay, the animals so far we have studied, in those we have seen that at the developmental stage of the gastrula, neural tube formation has started. Okay, in this animal lamprey, the neural tube becomes more modified. Okay, this hollow initially the neural tube is hollow. This neural tube becomes modified anteriorly
more, and that anterior portion of the modified neural tube becomes brain. Anteriorly modified neural tube, sorry, in this animal. Okay, and that anterior portion of the neural tube becomes complicated also. So in this animal we see a more complicated brain in comparison with amphioxus or lanceolate. What happens to the posterior part of the neural tube? Anterior part has become brain. Anterior part, and the posterior part okay, posterior part transforms into spinal cord. Okay, spinal cord gives rise to many spinal nerves. Brain also gives rise to cranial nerves, as is the common case in most of the vertebrates, with few exceptions. We have, means vertebrates have 10 pairs of cranial nerves. Okay, brain and spinal cord, these both comprises central nervous system of this animal, lamprey or petromyzon. Cranial nerves and spinal nerves, these comprises peripheral nervous system of this animal. Okay, so if it is asked that describe about the nervous system of lamprey, you will describe one by one. Central nervous system first, then peripheral nervous system, about cranial nerves and spinal nerves, and then nervous system also comprises sensory organs. We will come to that in the next lecture. Otherwise, this lecture will become big, a long one. There are 7 to 8, so far we know, sensory organs are present in this animal. This we will see later. First, we will see this one,
central nervous system and peripheral nervous system of lamprey. Okay, students. So moving ahead, now we will come to brain, central nervous system, which is brain plus sorry, spinal cord. तो पहले आप लोग ब्रेन को समझिए, इस एनिमल का ब्रेन कैसा है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है. Although this is a very primitive vertebrate animal, but we see in this well-defined regions of forebrain, midbrain, and hindbrain. There are three regions of brain in all of us, in all the vertebrates. These are: number one, forebrain; number two, midbrain; and number three, hindbrain. यानी ब्रेन के आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा. इसको वन बाय वन आप समझिए पहले. ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे. फोर ब्रेन को प्रोसेनसिफेलॉन भी कहते हैं. व्हाट वी से इट, प्रोसेनसिफेलॉन. ओके. मिड ब्रेन को मेसेनसिफेलॉन भी कहते हैं. और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफेलॉन भी कहते हैं. आप लोग याद करेंगे जब लैंसिलेट्स का नर्वस सिस्टम बता रहे थे तो उस समय भी हम लोगों ने ये बताया था कि न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पोर्शन मॉडिफाई हुआ, कॉम्प्लिकेट हुआ उसका स्ट्रक्चर, एंड दोज स्ट्रक्चर्स एंटीरियर रीजन ऑफ द न्यूरल ट्यूब हैज differentiated into these three regions: forebrain, midbrain, and hindbrain. Prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Okay? But prosencephalon is again subdivided into two distinct regions. In petromyzon animal, see, two distinct regions, prosencephalon. Number one, telencephalon, and number two is diencephalon. Okay. Now I'm coming one by one. I'll describe all of these one by one. Then you will come to understand it more. First of all,
the functions associated with these regions of the brain in this animal, जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं टू ब्रिंग द रिसेप्शन टू द ब्रेन, सिग्नल रिसेप्शन टू द ब्रेन, that is the sensory reception to the brain. Okay, and accordingly the response will happen. If the signal doesn't come, then response will be absent. You will miss the response. So these cranial nerves are very essential for the brain's to regulate and function. In this animal, all of the cranial nerves except one, and that one is olfactory. Olfactory nerve. Only olfactory nerve arises from the forebrain. Only one. This one arises from forebrain. Rest 9 arises from midbrain and hindbrain. I'll draw the picture of the brain after this explanation. Now you understand it like this. Suppose first I'll explain forebrain. So forebrain से सिर्फ एक ही नर्व, एक नर्व कहने का मतलब वन पेयर ऑफ नर्व. जब हम एक बोलेंगे वन पेयर समझना, ठीक है. वन पेयर ऑफ olfactory nerve arises from the forebrain. Okay. And this forebrain is basically associated with the sense of smell. Forebrain is associated with the sense of smell. Okay. Midbrain is associated with the sight. And hindbrain is associated with हियरिंग. हियरिंग कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इसके पास कान तो है नहीं एक्चुअली, बट दे कैच द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, सो इट इज कॉल्ड एज, उसके लिए स्पेशल टर्म है एकॉस्टिक. ACOUSTIC. जो म्यूजिक लवर्स होंगे उनको ये वर्ड पता होगा. एकॉस्टिक लैटरल, ठीक है. लैटरल साइड से ये साउंड के वाइब्रेशंस को ये परसीव कर सकते हैं. सो एक तो हो जाता है एकॉस्टिक लैटरल प्लस टेस्ट बड सिस्टम. टेस्ट भी
ये this one is controlled by hindbrain. Okay, rhombencephalon is responsible for this function. अब सवाल उठता है कि फोर ब्रेन जो है उसके दो हिस्से हैं, टेलेंसिफेलोन एंड डायंसिफेलोन। ये कौन से हैं, ये क्या करते हैं? और फोर ब्रेन बता रहे हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। और एक ही क्रेनियल नर्व दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व दैट कम्स आउट फ्रॉम द फोर ब्रेन। ओके, तो ये जान लीजिए कि टेलेंसिफेलोन इज बेसिकली the cerebral hemispheres. These are cerebral hemispheres या सेरिब्रम कह लीजिए। कौन? टेलेंसिफेलोन। ओके, और डायंसिफेलोन पोर्शन जो है वो ये पीछे की तरफ होता है और ये सप्रेस कर दिया गया है टेलेंसिफेलोन के द्वारा। ठीक है, लेकिन टेलेंसिफेलोन और डायंसिफेलोन बोथ आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। टेलेंसिफेलोन का एक और हिस्सा है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। हो गया आपका फोर ब्रेन में टेलेंसिफेलोन, सेरिब्रम प्लस ऑल्फैक्टरी लोब। एंड डायंसिफेलोन अभी हम बताएंगे आपको, डायंसिफेलोन रिमेन्स पोस्टीरियर टू द cerebral hemisphere. Okay, this is after this cerebral hemisphere टेलेंसिफेलोन हो गया। टेलेंसिफेलोन के पोस्टीरियर में डायंसिफेलोन। तो जैसे हो गया फोर ब्रेन, सबसे ब्रेन का आगे का हिस्सा, तो ब्रेन का सबसे आगे का हिस्सा हो गया आपका। अब ये सब डिवीजन को लेके चलेंगे तो सब पहले आ गया टेलेंसिफेलोन, उसके बाद डायंसिफेलोन। ओके, फिर डायंसिफेलोन के बाद मेसेंसिफेलोन। ओके, फिर मेसेंसिफेलोन के बाद रोम्बेनसिफेलोन। ओके, तो अब देखिए वन बाय वन। रोम्बेनसिफेलोन भी दो हिस्से में होते हैं, दो पार्ट है इसका। ओके, एक को कहते हैं आप सेरिबेलम, ओके, एंड दूसरा हो गया आपका मेडुला ओब्लोंगाटा। और ये जो क्रम मैं लिख रहा हूं, यह क्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। मिड ब्रेन मेसेंसिफेलोन बेसिकली आपका हो गया ऑप्टिक लोब, आंख वाली ऑप्टिक लोब।
क्या लिखे? मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ साइट। तो मिड ब्रेन, ऑप्टिक लोब इज मिड ब्रेन। ठीक, ओके। अब देखिए कहाँ थे हम। और उसके बाद ऑप्टिक लोब आ गया। टेलेंसेफेलोन के पोस्टीरियर में डायंसिफेलोन, डायंसिफेलोन के पोस्टीरियर में ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब के पीछे सेरिबेलम, सेरिबेलम के पीछे मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। ओके, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एंटीरियर आपका रोमेंसिफेलॉन is transformed into cerebellum, okay, and the posterior is transformed into medulla oblongata। एक दो नाम और हैं, अगर हम घुसा दें तो इसीलिए आप और ज़्यादा कंफ्यूज ना कर जाओ। तो इसको बोलते हैं रोमेंसिफेलोन के एक पार्ट को मेटेंसिफेलोन, सेरिबेलम इज बेसिकली मेटेंसिफेलोन, और मेडुला ओब्लांगाटा इज माइलेंसिफेलोन। ओके, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए नहीं लिखा मैंने। ये सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम के पीछे मेडुला ओब्लांगाटा। ओके, अब देखिए पिक्चर बना के आपको समझाना पड़ेगा। तो आप right now I am drawing one picture, hope you can get it। see, सबसे पहले ब्रेन इज वेरी simple in structure, this animal's brain। First of all, there is a position of olfactory lobe, paired olfactory lobe, olfactory lobe बना लो, ऐसे करके तितली जैसा बना लो। उसके बीच में लेकिन सिमेट्री रखना। ओके, एंड वन सेकेंड, पहले ये हो गया आपका ओल्फैक्टरी लोब, उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फेयर बना लो, सॉरी, दिस इज पाइनियल आई, और इसके बाद आपका ये आपका ख़त्म हो गया। ये हो गया आपका प्रोसेंसिफेलोन। प्रोसेंसिफेलोन में आपका टेलेंसिफेलोन और डायलेंसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन हो गया सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। ये है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, okay, this is pineal eye,
ठीक है. This is forebrain. सॉरी. फोरब्रेन का डायनसिफेलॉन वाला हिस्सा, बार बार ये आता है. एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कर दो. डायनसिफेलॉन इज वेरी, इसमें मतलब because this is the dorsal view, okay, and there is one special structure present in this over the brain of this animal, that is called as choroid plexus. Choroid plexus. And choroid plexus is basically the vasculature, okay, means blood, a network of blood vessels that is present over the midbrain, okay, and hindbrain. So if you see dorsally, then you will see exposed forebrain and choroid plexus and then medulla oblongata. Beneath the choroid plexus, there is midbrain and anterior portion of hindbrain, that is cerebellum. So to see cerebellum, optic lobe, you have to remove choroid plexus. So I will draw the picture with the choroid plexus first. See. Choroid plexus starts from here itself, and then this is diencephalon, that is part of forebrain, any posterior part of the forebrain, and beneath this choroid plexus there is a presence of optic lobe. Optic lobe. Okay. And after this optic lobe, cerebellum starts. So simple. Okay, this is spinal cord. इसको थोड़ा सा और फुला दो सेरिबेलम को. दिस इज सेरिबेलम, और सेरिबेलम के पीछे नीचे मेडुला ओब्लोंगाटा. Okay. So this is the structure of brain of petromyzon. The means the dorsal view. So this is the dorsal view.
brain of lamprey with choroid plexus. Right, students? This is mesencephalon यानी मिड ब्रेन, and this is hind brain. हाइंड ब्रेन के भी दो हिस्से, हाइंड ब्रेन का अगला हिस्सा सेरिबेलम, पिछला हिस्सा मेडुला ओब्लांगाटा। स्पाइनल कॉर्ड शुरू यहाँ से कर दी, यहीं तक मानो हाइंड ब्रेन। ओके, ये नहीं ठीक। फोर ब्रेन का अगला हिस्सा आपका सेरिब्रम, उसके बाद ओल्फैक्टरी लोब, फिर डायनसिफेलॉन, फिर उसके बाद पहले टेलेंसिफेलॉन है अगला हिस्सा, डायनसिफेलॉन, फिर ऑप्टिक लोब आ गया, फिर सेरिबेलम, ये हो गया विथ choroid plexus, the dorsal view. If you remove this choroid plexus and you want to see the entire brain devoid of this structure, then you will observe in this midbrain section where the optic lobe is there, you will see along with the you will see, because what you are seeing is the diencephalon. Okay, you will see ventricles also. Okay, there are 4 ventricles. Ventricles means these are fluid filled spaces, not the tissue filled spaces. So there are 4 ventricles present in the brain of lamprey. I am marking their locations. 2 ventricles, 1 each in cerebral hemispheres. Okay, that is the first ventricle, number 1, number 2. Okay, position of third ventricle is just beneath the pineal eye. Okay, third ventricle here, and the fourth ventricle, the biggest one, is present here. This is the fourth ventricle. Sorry. Point to be noted here that all these ventricles are connected. Okay. There is a connection between third ventricle, and the fourth ventricle, and the tube's name is iter. Okay, so you can see once again I'm describing it. Prosencephalon, this is the forebrain, prosencephalon, which is consisting of a pair of
small cerebral hemispheres. Okay, small cerebral hemispheres. Add a pair of olfactory bulbs or lobes. These olfactory lobes give rise to a paired olfactory nerves to the nasal capsule of this animal. Okay, and the olfactory bulbs also, these contain small ventricles, but the cavities of the cerebral hemisphere are called as first and second ventricles. Because their position are lateral, they are also called as lateral ventricles. So, what you'll say? First and second, these are lateral ventricles. These lateral ventricles are in communication with the third ventricle, this one. ये communication है इनके बीच में. Okay. And this third ventricle is present in diencephalon. See this area, this whole area is diencephalon. Okay, this third ventricle. आपने फोरामेन ऑफ मोनरो का नाम सुना होगा. अभी आगे एनिमल, कई सारे एनिमल्स के का जो हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे ये सब आएगा. उसमें भी फोरामेन ऑफ मोनरो है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में आगे आएगा. क्योंकि फोरामेन ऑफ मोनरो जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? लैटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रहा है. सॉरी. आपने थैलमस का नाम सुना होगा, हाइपोथैलमस का नाम सुना होगा और इपीथैलमस का नाम सुना होगा. ओके. थैलमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन और थैलमस के नीचे का हिस्सा हाइपोथैलमस कहलाता है और थैलमस के ऊपर का हिस्सा इपीथैलमस. As this is the dorsal view, you cannot see hypothalamus and thalamus in this. Only you can see epithalamus. This is epithalamus. I should use different color. See, जो यहाँ मैंने अभी डायंसिफेलोन किया मार्क, ये है आपका इपीथैलमस. अभी येलो से जिसको मार्क कर दिए. ओके. डायंसिफेलोन ये पूरा है. इस इपीथैलमस के नीचे है थैलमस, उसके नीचे है हाइपोथैलमस. तो आप कहोगे फोर ब्रेन का हिस्सा हमारा क्या है? टेलेंसिफेलोन. फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफेलोन भी कहते हैं. प्रोसेंसिफेलोन, टेलेंसिफेलोन, डायंसिफेलोन दोनों से मिलके बना है. टेलेंसिफेलोन हो गया सेरिब्रम और डायंसिफेलोन में इपीथैलमस, थैलमस एंड हाइपोथैलमस. ओके.
समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये डायनसिफेलॉन मेम्ब्रेनस रूप है, होते हैं इसके, और इनके lateral walls, these lateral walls, you see the lateral view of this, they are uh, uh, connecting the hypothalamus. Say this is epithalamus, so the lateral walls, and here the hypothalamus. This is thalamus. So thalamus is connecting epithalamus with the hypothalamus. Okay. So you can say, so this is the dorsal view, so the hypothalamus is not in the view. So the ventral part is portion. At the ventral position, hypothalamus is there. Okay. And in many vertebrates, this is the primitive vertebrate, early vertebrate, and all of us, and in all of these vertebrates, all of the vertebrates, you will find the same type of plan, anatomical arrangement of hypothalamus, thalamus, and epithalamus. Okay. मजे की बात यह है कि इनका हाइपोथैलेमस भी वेल डेवलप्ड है. दैट मीन्स hypothalamus is part of hypothalamus pituitary gonadal axis. Hypothalamus is giving rise to hormones. So, and hypothalamus is part of the brain. So you will write here. सभी पार्ट अभी बता रहे हैं, आप ये सब पार्ट को डिस्क्राइब भी हम कर दिए हैं. आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, उसमें ऐड करोगे क्या कि हाइपोथैलेमस इज वेल डेवलप्ड. ओके. ओके. मिड ब्रेन तो बता दिए. मिड ब्रेन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल है, 2 ऑप्टिक लोब्स. इसमें होते हैं 2 ऑप्टिक लोब्स. यहाँ लोब लिखे क्योंकि इधर वाले को रेखांकित किए हैं, इसे इधर लोब लिखे, लेकिन ये भी वही ऑप्टिक लोब है. 2 ऑप्टिक लोब्स. ओके. और इन्हीं 2 ऑप्टिक लोब्स के बीच में देयर लाइज ए मेम्ब्रेनस कोरोइड प्लेक्सस. दिस वन. जो कोरोइड प्लेक्सस बार बार बोल रहे हैं वो लिखे ही नहीं. कोरोइड प्लेक्सस, ये रहा आपका. दोनों ऑप्टिक लोब के बीच में. और ये 4th वेंट्रिकल के ऊपर में जाकर के कोरोइड प्लेक्सस दोनों साइड का फ्यूज हो जाता है. यहाँ देखिए, आगे यहाँ आगे दोनों मिल गया. ओके. 4th वेंट्रिकल में
सेरिबेलम, मिड ब्रेन समझ गए आप। मिड ब्रेन में दो ही मतलब मेन चीज, ऑप्टिक लोब, दो ऑप्टिक लोब है और कोरॉइड प्लेक्सस है। फिर आइए हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन का जो एंटीरियर हिस्सा है सेरिबेलम, ये छोटा स्ट्रक्चर है सेरिबेलम। एक ट्रांसवर्स लोब है विच इज एंटीरियर टू मेडुला ओब्लोंगाटा। और मेडुला ओब्लोंगाटा इज द largest and well developed part of the brain, well developed part of the brain। ठीक है। इन लैम्प प्रे, सबकी बात नहीं, लैम्प प्रे का बता रहे, लैम्प प्रे मेडुला ओब्लोंगाटा सबसे बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आप समझ रहे हो। तो जैसा अभी बताया कि आइटर जो है तीसरा और चौथा नहीं सॉरी, आइटर जो है, हाँ आइटर तीसरा और चौथा को वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करता है। फोरामेन ऑफ मोनरो पहला, दूसरा और तीसरा के बीच में कम्युनिकेशन करता है, वेंट्रिकल का कनेक्ट किए हुए, और आइटर तीसरा और चौथा को किए हुए कनेक्ट। ठीक है। और ये आइटर पूरा मिड ब्रेन से क्रॉस करके अंदर से जा रहा है, और दैट डक्ट इज कॉल्ड एज आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस उतना डिफिकल्ट नाम नहीं है, ITER, बस इतना याद रख लोगे, आइटर। ओके, सो द ब्रेन पार्ट इज ओवर नाउ। तो बता दिया आपको, ब्रेन इसका समझा दिए, इसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है लैम्प्रे का। अब ब्रेन जब समझ गए, हाइपोथैलेमस इज वेल डेवलप्ड, और क्या खासियत है इसकी, हाइपोथैलेमस इज वेल डेवलप्ड और मेडुला ओब्लोंगाटा इज लार्जेस्ट एंड दिस ऑल्सो इज well developed, this also is well developed, medulla oblongata and hypothalamus। जहाँ तक सेरिब्रम की बात है, सेरिब्रम अपीयर हुआ है बट नॉट वेल डेवलप्ड, कोई बहुत बड़ा सेरिब्रम नहीं है। ठीक है, सेरिब्रम छोटा है इसका। ओके, तो अब ये ब्रेन हो गया, तो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि तुरंत हो जाए ये फिनिश। तो आपको मैंने बताया ही कि वर्टिब्रेट्स में 10 क्रेनियल नर्व्स हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और यह इस वर्टिब्रेट में, पेट्रोलैम्प्रे में 9 जो है वो मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन से निकला, समझे। और सिर्फ एक पेयर जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो 4 ब्रेन से निकला। तो आपको मैं एक बार नाम भी यहाँ चूंकि हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो गया, और ब्रेन से निकलने वाले अब
cranial nerves. Sorry. Nerves. 10 pairs. ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, ये फंक्शन हम आपको बताएंगे। मेन 3 जो है ये ब्रेन के 3 रीजन से एसोसिएटेड। क्रेनियल नर्व्स का नाम जान लीजिए, उस सब रीजन से कहाँ कहाँ से निकल रहा है। फोर ब्रेन से तो एक ही निकला, और मिड ब्रेन से कितना निकल रहा है, हाइंड ब्रेन से कितना निकल रहा है। अब आप देखते जाइए वन बाय वन। नंबर 1, नर्व नंबर 1, ये हम नर्व नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे उसका ओरिजिन और उसका फंक्शन। सॉरी। तो नर्व नंबर 1, 2, 3, कितना पेयर है, 10 जोड़ा है। 10 नंबर लिख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोड़ा हो गया। अब आइए क्रेनियल नर्व नंबर पेयर नंबर 1, ओके। इसका नाम है ओल्फैक्टरी। बताए ही थे ओल्फैक्टरी, सिर्फ ओल्फैक्टरी ही 4 ब्रेन से निकलता है, 4 ब्रेन से। सॉरी। क्या फंक्शन है ओल्फैक्टरी का, स्मेल। बस। नंबर 2, ऑप्टिक नर्व। कहाँ से निकला, मिड ब्रेन से। क्या काम है, विजन में, क्योंकि इस वर्टिब्रेट के पास वेल डेवलप्ड आईज है, उनके विजन में ये ऑप्टिक नर्व क्या कर रहे हैं, दीज ऑप्टिक नर्व्स आर इनर्वेटिंग द रेटिना of that well developed eye. That's why it is helping in the vision. That's why this animal is able to see. Vision है तो क्यों कर रहा है, the nerves are innervating the retina. यहाँ भी लिख सकते हो, innervates the tip of snout. That's why they are able to smell it. Okay. The third pair of the nerve is oculomotor. Okay. This also is coming from midbrain, and the function is movement of eye muscles. Movement of eye muscles. चौथा हो गया आपका ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर निकला सेरिबेलम से, यानी
हाइंड ब्रेन से। लिख सकते हो सेरिबेलम। नर्व नंबर 4 ट्रोक्लियर सेरिबेलम। ये भी आई मसल से रिलेट, एक आंख को बस, दोनों आंख को नहीं, ठीक है। वी डोंट नो द मच डिटेल अबाउट इट, व्हाई ओनली वन आई। नो, वन ऑफ द आई मसल, नॉट द वन आई। आई मसल लिख लो बस। चौथा, पांचवा इज ट्राइजेमिनल। ये निकलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, यानी हाइंड ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये अपर एंड लोअर जॉ को इनर्वेट करता है, उसमें जाता है ये नर्व। सिक्स्थ वन इज एबडसेंस। और एक खासियत है इसमें कि इसके एग्जिस्टेंस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये अभी भी डाउटफुल है कि लैम्प्रे में ये है या नहीं है, as lamprey is a primitive vertebrate. These nerves are found बाकी सब वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग अस, ये सारे नर्व्स हैं हमारे अंदर, एबडसेंस है, बट इन लैम्प्रे क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ, ओके, इट इज डाउटफुल whether they are present or not. Seventh one is facial nerve. Eighth one is called auditory nerve. Ninth one is glossopharyngeal. Glossopharyngeal. And 10th one is none other than vagus nerve, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वेगस नर्व हार्ट को। इन अस, ओके। अब देखते जाइए इसमें। सातवां का आपका फेशियल, ये भी मेडुला से निकलता है, हाइंड ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगाटा, आपका फेशियल, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट बर्ड्स। ऑडिटोरी, ये भी मेडुला से निकला, और ये लैटरल लाइन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अभी सेंसरी ऑर्गन्स आपको बताएंगे इसके, तो उसमें आपको बताएंगे लैटरल लाइन सिस्टम होते हैं, लैटरल लाइन। सिस्टम, ओके।
और इंटरनल ईयर होता है एंड इंटरनल ईयर। फिर ग्लोसोफेरेंजियल ऑल्सो comes out from medulla and it is intervening pharyngeal region and the first gill. Pharyngeal region and first gill, only first gill. Vagus, this also is coming from medulla and this vagus nerve innervates this vagus nerve innervates visceral organs। उसके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इस सब में विसरल ऑर्गन्स में जाता है। और फर्स्ट गिल में तो ये, बाकी रेस्ट गिल्स में यह वेगस नर्व जाता है। ओके, सो हियर brain and the nerves coming out of it is completed. Now students, in the next class we will see पेरिफेरल नर्वस। अभी हम लोगों ने ब्रेन देख लिया, ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन देख लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्रेनियल नर्व देख लिया। इन द नेक्स्ट क्लास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल नर्व। छोटा छोटा ये टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये देख लेंगे एंड देन वी विल कम टू सेंसरी ऑर्गन्स। द नेक्स्ट क्लास ऑल दीज 3 टॉपिक्स विल बी कवर्ड, देन नर्वस सिस्टम ऑफ petromyzome will be over. Okay students, thanks.